of our initiation, following the four regulative principles, and chant the Hare Krishna Maha Mantra without any offenses. In this way, the connection is there eternally. It is not that we only good in the beginning and in the middle and in the end we're not be able to follow it. So that's why it is mentioned that Vani, or the instructions of the spiritual master, is much more important than Vapu. And we would like to pray to the Supreme Lord to give our spiritual master more and more years of his existence here with us, so that he'll be able to continue guide us. Would like to humbly request the Supreme Lord to give him much better health, and so he'll be able to guide us continuously. So our only prayer today is that also he may be able to bless us, so that we'll be able to continue on with our bhakti without any interruption, become free from material desires ultimately, and go back home, back to Godhead. Srila Bhagavad Pada Ki Jai. We just came back also from traveling from Russia, Moscow, Canada, and USA. We just came back. It is, as far as I can see, is always increasing, which is very difficult to understand, especially at his age right now. We're celebrating his 78th appearance day today. The time that he spent in traveling and meeting different devotees, for an ordinary person, it is not possible, because he is on a different level. He is no way. Just like we're not able to understand who is Krishna, we're not able to understand also Srimati Radharani and Lord Shiva. There are these four tattvas that not able to fully comprehend. But somehow or other, we don't need to comprehend. We just need to develop our love towards our Guru Maharaj by following his instructions, and to preach in the same then the more our Guru Maharaj will be pleased, and therefore Krishna will be pleased. Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya prasadat nagati kutopi. Without the mercy of Guru, we're not able to get the mercy of Krishna, and vice versa. So please continue on with our bhakti, but increase preaching. And definitely the number one in the world, number one temple is Delhi. Why? Because you can tell by the number of books that's being distributed here. The proof of the pudding is in the eating. So the proof that this is number one temple in the world is because everyone here is so much inspired by our Guru Maharaj to give the conditioned souls the Harinam, and also the Srila Prabhupada's transcendental books. So
we cannot thank enough our Guru Maharaj. We can only repay him by preaching vigorously like him. Hare Krishna. Srila Bhagavad Pada Ki. हरे कृष्णा। पूज्य गुरुदेव श्रील भगवत्पाद जी महाराज की। तो यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे गुरु भ्राता और गुरु बहन, आज हम सभी लोग के लिए ये तिथि बड़े पावन है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही भगवान की व्यवस्था से हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, जो हमारे संस्था का सर्वश्रेष्ठ फेस्टिवल है, जिसको बड़े धूमधाम से बनाते हैं, और उसी का जस्ट तुरंत बाद कृष्ण के कृपा के मूर्त विग्रह भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, वो भी नंदोत्सव के दिन उनका प्राकट्य हुआ। तो जन्माष्टमी का बिजी शेड्यूल से टायर्ड होकर के फिर भी फुर्सत नहीं, प्रभुपाद जी के व्यास पूजा करना ही पड़ेगा। तो महाराज ने थोड़ा कृपा के बीच में एक दिन गैप दिए, नहीं तो फिर इस रियली लग जाता। गैप दे करके अपने तरफ से कुछ नहीं, हमें सभी करना था। एकादशी है, ये एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है, हम सब अर्णमय कोश है। तो हम जैसे प्राणियों को अन्न से वंचित करके भगवान में लगाने के लिए तो फास्टिंग करा करके उस तिथि पे प्रकट हुए। केवल एक दिन गैप दे करके एकादशी तिथि में ये हरिवासर है। उनका नाम भी शायद उनके पिता माता ने ऐसे ही रखे थे, क्योंकि नंदोत्सव के बाद ही हुए थे एकादशी के दिन, इसलिए गोपाल कृष्ण उनका नाम भी ले तो भगवान का नाम ही है। तो और प्रभुपाद जी भी कृपा करके इस नाम को लास्ट तक परिवर्तन भी नहीं किए कि इतने सुंदर नाम है। केवल उनका नाम ही स्मरण करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। जो उनका शरण ले और उनका आदेश पालन करे, फिर क्या ना होगा। तो ऐसे तिथि जो हमारे संस्था का जो सर्वश्रेष्ठ उत्सव के सीरियल है, उसमें तीसरा दिवस में आ रहा है। तो हम लोग विभिन्न मंदिर से, विभिन्न स्थान से महाराज की इस जन्म तिथि को मनाने के लिए दिल्ली में एकत्रित होते हैं। तो जैसे कहा गया है शास्त्र में, हम जैसे बद्ध जीव का उद्धार पाने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान के भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं, ना अन्य पंथा। और भगवान के भक्ति वो कहाँ से मिल जाएगा? भगवान के भक्ति तो और कहीं से नहीं मिलता है। भगवान के भक्ति का दाता है भक्त। भक्ति भक्त संगे सुजायते। भक्त कौन होते हैं? जो भगवान के निज जन होते हैं, उनके पास भक्ति रहता है, वही दे सकते हैं। तो उन भक्तों का सम्मान, उनके पूजा भी शास्त्र कहता है भगवान की जैसा ही होना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि उनका पूजा सम्मान भी साक्षात हरि के समान ही होना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, जिनका भजन करके, जिनका सेवा करके, जिनके भक्ति करके ये बद्ध जीव उद्धार पाना चाहता है, वही भगवान हरि ही सभी शास्त्र से घोषणा करके बोलते हैं कि मद भक्त पूजा अधिक।
मेरे से मेरा भक्तों का पूजा अधिक है। यहाँ तक कि शास्त्र में इसे कहा गया है, सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम। कोई अगर भगवान अच्युत के सेवा में तन मन लगा करके लगे रहे, लेकिन उनका सफलता जीवन में प्राप्त होगा, ये डाउट है। सिद्धिर भवति वा नेति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन असंशयंतु तद भक्ता परिचर्यारतात्मना। लेकिन इन लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, 100% गारंटी है, जो भगवान अच्युत के सेवा को छोड़ करके भगवान के जो भक्त हैं उनके सेवा में जो लगे हुए हैं, जो उनके समर्पित किए हैं उनके सेवा में, उनका तो सिद्धि में कोई संशय नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत के प्रचार किए, कृष्ण भगवान को दिए, कृष्ण भगवान के विग्रह दिए, उनके पूजा पद्धति दिए, उनके ग्रंथ दिए, उनके सेवा परिपाटी सब कुछ दिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने विश्ववंद्य है, कृष्ण कृपा की मूर्ति है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने, उन्होंने प्रभुपाद जी को दुनिया में देते हैं, हम लोग को सब दिए हैं, तो प्रभुपाद के कृपा मूर्ति हैं। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार करते हैं, हमारे गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद कॉन्शियसनेस प्रचार करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे अगर कोई सचमुच प्रसन्न करना चाहे तो मैंने जो बहुत कीमती समय लगा करके बूढ़ेपन में सारे जोर लगा करके जो प्रभु कृष्ण के लिए जो ग्रंथ लिखा, उसी को प्रचार प्रसार करो, तो इसमें मैं जीवित रहूँगा, इसमें सबसे प्रसन्न रहूँगा। तो जिसका जीवन आधार यही है, यही व्रत लेकर के जो सेवा कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही प्रभुपाद अनुग्रह है, प्रभुपाद की कृपामूर्ति है, और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन संकल्प ले बैठे हैं। तो ऐसे जो स्वामी प्रभुपाद जो कृष्ण भगवान का अति प्रिय है, और उनका जो अति प्रिय होगा, अगर उनको कोई हम सेवा के द्वारा, आदेश पालन के द्वारा किसी प्रकार से, अगर किसी प्रकार से उनको प्रसन्न कर पाए, तब हमारा जीवन सचमुच सार्थक हो पाएगा। तो उनके रिकमेंडेशन से प्रभुपाद जी ने, जैसे आज सुबह प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी बोले कोई ज़रूरत नहीं, बैक डोर के की मेरे पास है ही है, मैं पीछे गेट से ले जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी के बाद परिचय कौन कराएगा? प्रभुपाद जी के ऐसे कोई अपने आदमी हो जो उनका नाम लेने से प्रभुपाद अच्छा 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 आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद जी ने बिना कोई बात विचार में, जो किसी को स्वीकार कर सकते हैं, जब गुरु महाराज जी का नाम लेकर कोई जाए, फिर वो परीक्षा निरीक्षा नहीं करेंगे, फिर आपको बैकडोर में एंट्री मिल सकता है। तो ऐसे जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। भक्त के ऊपर भगवान कृष्ण अगर कृपा करते हैं तो कैसे कृपा करते हैं? गुरु के माध्यम से ही करते हैं, इसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, गुरु के माध्यम से ही करते हैं। तो फिर जो बद्ध जीव को उद्धार का उपाय क्या है? जब हम ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज हमको प्राप्त हुआ गुरु के कृपा से और कृष्ण की कृपा से। लेकिन कृपा तभी हुआ, ऐसे कृपा नहीं होता। क्या बोलते हैं? कोई भाग्यवान जीव, कोई घूमते फिरते कोई भाग्यवान हो, उसी को कृपा मिलता है, सभी को नहीं मिलता। तो हम लोग क्या भाग्यवान है? क्या प्रमाण है हमारे पास हमको कृपा मिला कि नहीं? क्योंकि कृपा मिलता तो उनको जो भाग्यवान है, कोई भाग्यवान जीवी गुरु कृष्ण की कृपा वो प्राप्त करते हैं, भक्ति लता के बीज वो प्राप्त करते हैं जो भाग्यवान है। तो हमको कैसे पता चलेगा हम ये भाग्यवान है या नहीं? भाग्यवान हम सब समझते हैं कि जिनका पास बहुत धन है, जिनका पास बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर गुण है, ज्ञान है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से हम भाग्य को गणना करते हैं। ये जिसका पास है वो बड़े सुकृतिवान, बड़े भाग्यवान है, अच्छा कर्म किया है, ये सब उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान के खाता में भाग्यवान कुछ और है। वो स्वयं कहते हैं चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति नो अर्जुन। सुकृतिवान 4 प्रकार के हैं। पहले गिनाते हैं कौन है सुकृतिवान? नंबर 1 के आर्त। आर्त माने
बचाओ बचाओ, मैं मर गया, मुझे बचाओ, ऐसे हेल्पलेस होकर के जो भागे फिरते रहता है, उसको कभी कितने बड़े भाग्यवान को कहेगा ना, कहेंगे बड़ा दुर्भागा है। और भगवान के खाता में नंबर 1 भाग्यवान तो वो है सुकृतिवान। सुकृतिवान है अच्छा कर्म वाला। अर्थ दूसरा अर्थार्थी, थोड़ा पैसा दे दो, मदद करो, पैसा दे दो, ऐसे भीख मांगे जो घूमते फिरे, उसको हम कभी कहेंगे भाग्यवान करके? भगवान के खाते में दूसरे नंबर के भाग्यवान वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इस प्रकार के आर्त अर्थार्थी होकर मारे फिरे तो उसको भाग्यवान कहे, नहीं। भगवान कहते हैं कि भले आप आर्त हो, भले अर्थार्थी भी क्यों ना हो, जिज्ञासु क्यों ना हो, अगर आप किसी भी कारण से मेरे पास आते हो, भजते माम, वही है भाग्य। जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी भी उपाय से अगर कृष्ण के शरण में कोई आए, कृष्ण भजना करे, कृष्ण के सेवा के लिए मन में विचार करे, वही उनके भाग्य का उदय है, वही है भाग्यवान। सो वो भाग्यवान वो कराते हैं जैसे भी तैसे, स्कूल से, कॉलेज से, घर से, गृहस्थी से, गांव से, कहीं से पकड़ करके इतने बड़े मंडल इकट्ठा कर चुके हैं। वो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि भाग्य वही देते हैं, हम लोग भाग्यवान नहीं हैं, हम लोग से महादुर्भागा है, लेकिन वो हमको भाग्यवान दे करके इस स्थिति पर हमको लाते हैं। अब भाग्यवान बन करके जब कृष्ण के और गुरु के कृपा से भक्ति लता के बीज प्राप्त हुआ तो हमको स्वीकार किए, तो उसके बाद में हम सोचते हैं कि बस गुरु स्वीकार कर दिए, वो गुरु जी का काम है, हम तो अपना काम करेंगे, वो हमको उद्धार करेगा, उनका काम है, हम गड़बड़ी करें वो भोगें, जो उनका ड्यूटी है वो हमारा ड्यूटी छुट्टी। नहीं 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 नहीं, शास्त्र कहता है कि बीज देने के बाद गुरु और कृष्ण का काम छुट्टी, अभी आपका काम शुरू हुआ। हाँ, माली हया सही बीज करो अर्पण, कौन करेगा? गुरु कृष्ण थोड़ी करेंगे, वो तो सीड दे दिए, अभी उसको खेती करना, उसको बढ़ाना, उगाना, फल फूल तक ले जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ड्यूटी, अब हमारा कर्तव्य है। अब उसको कैसे करें बहुत लंबा विषय है, लेकिन शास्त्र में ही कहा गया है, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जल छूटे है पाए कृष्ण चरण। तो कृष्ण को तो नित्य भजन करना ही है, केवल कृष्ण भजन करने से भी काम नहीं मिलेगा। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है ना, गुरुर सेवन, नित्य कृष्ण भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है और गुरु जी का सेवा करना है, तब जाकर माया से छूट करके कृष्ण चरण प्राप्ति होगा। अब बात आया कृष्ण की, गुरु की सेवा करना है, कृष्ण के भजन तक करते हैं, जैसे जैसे नाम जप आदि कर लेते हैं मंदिर आदि में, तो गुरु की सेवा कैसे करें? कुछ लोग सोचते हैं गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के आसपास जमे रहें, उनके साथ लगे रहें, उनके साथ जो भी हो तो हम गुरु के सेवक बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, भागवत में प्रजापति कर्दम मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो उनको ब्रह्मा जी ने बोले प्रजा सृष्टि करने के लिए एक बार आदेश दिए, तो कर्दम मुनि ने ब्रह्मलोक छोड़ करके सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपुर में गुजरात में जा करके 10,000 साल तक कठिन तपस्या करने लगे, और उनके तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान की आंखें रो पड़े, उनके आंख से बिंदु निकला तो बिंदु सरोवर प्रकट हुआ। तब भगवान ब्रह्मा आ करके बोलते हैं कि बेटा तेरे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप देखिए तभी जमाने तो मोबाइल फोन आदि तो था नहीं, 10,000 साल तक उनसे अलग रह करके, बिल्कुल उनसे मिले भी नहीं, बातचीत भी नहीं, कि नो कांटेक्ट नथिंग, फिर भी उनके आदेश को जीवन प्राण करके पालन करते हैं, तो गुरु वास्तविक प्रसन्न होते, मानते हैं कि तुम मेरा आज्ञा को पालन किया। तो इस प्रकार केवल गुरु जी का बपू सेवा से, हाँ वो ठीक है, लेकिन उनसे कई गुना अच्छा है उनके वाणी की सेवा करना, उनके आदेश को अक्षर से पालन करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे, पुरी से जब वृंदावन आने के लिए विचार किए, तब जो उनके नित्य संगी, उनके शक्ति गदाधर पंडित जो क्षेत्र संन्यास ले चुके थे, वो भी बोले कि मैं आपका साथ चलूँगा। तो महाराज बोले आप तो क्षेत्र संन्यास लिए, आप नहीं आ सकते, गोपीनाथ की सेवा करना है, आप यहीं रहो, आप क्षेत्र सन्यासी, आप कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, वो क्षेत्र संन्यास धर्म से चूल्हा में जाने दो, आग में जाने दो, मैं तो आपके साथ जाऊँगा। कैसे भी करके महाप्रभु रोकने लगे, लेकिन वो नहीं माने, पीछे पीछे आए तो कटक तक आए। बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको वापस भेजे, वापस भेज करके वही बोले, उनको बड़े परिस्थिति में भेजे
वही इनके महाप्रभु के ये आचरण से शिक्षा प्राप्त होता है कि केवल कोई गुरुजी का साथ में रह कर के सेवा करने से कई गुना श्रेष्ठ होता है अगर उनको आदेश को जीवन प्राण करके हम पालन करें। वही है वास्तविक गुरु सेवा। इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं। अगर हम आज ऐसे पुण्य पवित्र तिथि में, गुरु महाराज की प्रकट आविर्भाव तिथि में, अगर हम सब आज यहीं बैठ करके उनके सामने, उनके चरण के सानिध्य में ये शुभ संकल्प अपने हृदय में करें कि जो भी हो आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत, शेष निश्वास पर्यंत उनके शरण के सानिध्य में, आश्रय में रह करके उनके आदेश के अनुसार सेवा करके इसी जीवन को पूरा करें। ऐसे शुभ संकल्प अगर आज से ले लें, उसी संकल्प मात्र से ही और भगवान की कृपा और गुरु परंपरा की कृपा हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार शुभ संकल्प करने के लिए मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ और गुरु जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि सभी को ऐसे शक्ति दे कि हम सब उसी के आदर्श पर, उन्हीं के आदर्श पर, उन्हीं के मार्ग अनुसरण करके वो जिस प्रकार प्रभुपाद जी के आदेश को जीवन प्राण करके, प्रभुपाद गत प्राण जैसे कहते हैं, कृष्ण गत प्राण प्रभुपद गत प्राण। मैंने एक बार महाराज से बोला कि महाराज ये सब इतने बुक्स निकला, महाराज सब खरीद लेते हैं, ओके ओके गोस्वामी बुक्स, बहुत लिटरेचर। मैं महाराज जब पढ़ते नहीं है ना, क्या करूं, मेरे लिए प्रभुपाद बुक्स ही जनप, मैं उतना ही पढ़ता हूं। मैं समझ गया कितने समर्पित है, इतने सारे बहुत सारे किताब ग्रंथ साहित्य सब कुछ है, लेकिन पढ़ने की क्षमता है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन व्रत ले बैठे हैं नहीं। मेरे गुरुजी का शिक्षा ही यही सर्वश्रेष्ठ मेरे प्रति, आरा ना कर है मने आशा, और कोई आशा नहीं। इतने व्रत लेकर के समर्पित जो हुए हैं, तो उनके आदेश को अगर हम पालन करने के लायक हो गए, तब तो हमारा निश्चित जीवन हमारा धन्य हो ही जाएगा। तो हम तो कभी करोड़ जन्म में ऐसा आशा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि महाराज ने जिस प्रकार प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, कदम उठाते हैं, जिस प्रकार परिश्रम करते हैं, इतना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उनकी कृपा से, उनकी जो समर्पण भावना है प्रभुपाद जी के प्रति और इस मिशन के प्रति, जो उनके प्रति तन मन धन से जो लगे हैं, ये जो समर्पित भावना का अगर 1 करोड़वां हिस्सा भी उनके शक्ति से हमारे पास आ जाए, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से कृतार्थ सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। भगवत पाद महाराज की जय। धन्यवाद हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। नाउ आई रिक्वेस्ट टू God brothers and God sisters of Guru Maharaj. One is His Grace Dikpal Das, come on the stage, and second is Amrit Keli Mataji. Please. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भागवत पाद की जय। गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो हमारा गुण। जब मेरे हस्बैंड गुरु बने तो महाराज ने मुझे पूछा कि आप प्रचार में साथ जा सकोगी? तो मैंने बोला महाराज आपकी कृपा होगी तो ज़रूर जा पाऊँगी। तो महाराज की इतनी कृपा है कि पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है, तो मैं सब जगह जा पाती हूँ। और मैं महाराज को यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं प्रचार कर सकूँ। महाराज रात दिन प्रचार करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। सुबह में दिल्ली में देखते हैं, दोपहर को वृंदावन में, और फिर दूसरे दिन रशिया और अमेरिका। और तो महाराज थोड़ी सी कृपा हमें भी देना कि हमें प्रभुपाद की सेवा करने का मौका मिले। महाराज को हम बहुत साल से जानते हैं, कनाडा, वैंकूवर। तो महाराज ने इतनी कृपा की कि हमें गुजरात से यहाँ बुला लिया, नहीं तो इतना प्रचार हम नहीं कर पाते, शायद वहीं बैठे रहते। लेकिन प्रभुपाद ने महाराज को कृपा दी, महाराज के द्वारा हमें कृपा मिली। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज की कि हमें प्रभुपाद की सेवा करने में, प्रचार करने में हेल्प किया। और प्रचार करने में महाराज प्लीज़ हमें हेल्प करते रहना कि हम प्रचार करते रहें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। एक आवश्यक सूचना आप सबके लिए कि जो सेकंड सेशन है अर्थात 5:30 बजे हम दूसरी बार यहाँ पर एकत्रित होंगे। तो प्रसाद पाने के बाद कोई जाएंगे नहीं, यहाँ आएंगे, क्योंकि दूसरा सेशन में महाराज की इच्छा है कि आप सब रहें और आनंद उठाएं व्यास पूजा उत्सव का। अब हमारे बीच में हिज गेस्ट साक्षी गोपाल प्रभु, जो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष हैं, और थोड़ा बोलेंगे। और उसके पहले बुक लॉन्च हो रहा है। छोटी छोटी किताबें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताबें हमारे सर साक्षी प्रभु और कुछ भक्तों ने मिलकर के बनाए हैं, वो लॉन्च करेंगे। उसके बाद फिर साक्षी गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा। सर्व साक्षी प्रभु महाराज को कुछ ग्रंथ दे रहे हैं। इसमें पहला एक ग्रंथ है क्वालिटीज़ ऑफ ए डिवोटी, इंग्लिश में है। महाराज उनका विमोचन करेंगे। दूसरा ग्रंथ है डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश के अंदर है। ताली बजाने में कंजूसी मत करिए, जोरदार ताली बजाए, कि किताबें बड़ी मेहनत से लिखी जाती हैं, तो ध्यान रखिए। तीसरा ग्रंथ है श्री हरि नाम चिंतामणि, ये भी इंग्लिश के अंदर है। और इसी का एक हिंदी ट्रांसलेशन है श्री हरि नाम चिंतामणि। और पिछले साल एक ग्रंथ पब्लिश हुआ था वैष्णव पदावली हिंदी में। आज उसी का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो वैष्णव सॉन्ग बुक है, उसका विमोचन होगा। ये 5 ग्रंथ जो हैं, ये 1 साल का समय लगा है इनका कलेक्शन करने का और इनको छापने के लिए सब भक्तों के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि सब ग्रंथों को सबको जो है बाहर से लेना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से तैयार किए जाते हैं और बहुत जगह से इनका जो है डाटा, इनका जो मटेरियल लिया जाता है। अब इसके बाद है हमारे हिज ग्रेस नंद गोपाल जीवन प्रभु, ये भी कुछ ग्रंथ लेके आए हैं। महाराज इनका भी विमोचन करेंगे। इसमें पहला ग्रंथ है ब्यूटी ऑफ द सोल, इंग्लिश का है आत्मा की सुंदरता। दूसरा ग्रंथ है इंग्लिश का है, ये भी भगवत गीता फॉर चिल्ड्रन है, ये बच्चों के लिए है, सरेंडर अनटू मी। और तीसरा ग्रंथ जो है ये भी बच्चों के लिए है, हिंदी के अंदर है। ग्रंथ का नाम बड़ा सुंदर है, मेरी शरण में आओ। अब पुस्तक का विमोचन होगा। ग्रंथ की तैयारी करी है एक माइक वहां भी था ना। ये है ना, ये वाला 8 वॉल्यूम्स संस्कृत है ना टोटल। ठीक है, कोई। हरे कृष्णा। ये क्वालिटीज़ ऑफ डिवोटी ये विशेष बुक है। महाराज के अलग अलग लेक्चर्स महाराज ने यूरोप और अमेरिका के कई जगहों में दिए थे, तो उन लेक्चर्स का इंग्लिश कंपाइलेशन है। और ये बुक है दूसरी डिवाइन इंस्ट्रक्शन, जो महाराज ने अलग अलग डिसाइपल्स को मेल लिखे थे और इंस्ट्रक्शंस दिए थे साधना और सेवा के संबंधित, तो उनका ये छोटा सा कंपाइलेशन है डिवोटीज़ की हेल्प के लिए। और थर्ड बुक है सारे वैष्णव आचार्यों का, हमने हिंदी में लास्ट ईयर पब्लिश किया था, वैष्णव पदावली, जो डिवोटीज़ ने अच्छा प्रतिसाद दिया था, तो उसका ये इंग्लिश वर्जन है, वैष्णव पदावली इंग्लिश फॉर्म में। और
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने हरिनाम के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उनके 200 ग्रंथों में से एक हरिनाम चिंतामणि। समराइज वर्जन कई डिवोटीज ने पब्लिश किए हैं। तो इसकी विशेषता ये है कि इसको हमने जो बंगाली ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उसके साथ, बंगाली श्लोकों के साथ, जैसे चैतन्य चरितामृत हैं वैसे श्लोक और उसका ट्रांसलेशन, और भक्तिविनोद ठाकुर ने जो सब टाइटल्स दिए हैं, फुट नोट्स दिए हैं, उनके साथ एक इंग्लिश प्रेजेंटेशन है। और उसी इंग्लिश हरिनाम चिंतामणि का, विशेष रूप से हरिनाम चिंतामणि जो 10 नामापराध है उनको बहुत ही विशद या डिटेल रूप में प्रस्तुत करता है। तो उसी का ही ये हिंदी वर्जन है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। ब्यूटी ऑफ द सोल बुक है महाराज के, अलग अलग टॉपिक्स पे कोटेशंस का, डिवोटी मोर देन 40 टॉपिक्स हैं उसमें। सरेंडर ऑन टू मी, ये भगवद गीता एज इट इज़ पे बेस्ड है बच्चों के लिए, विथ पिक्चर्स एंड प्रभुपाद ट्रांसलेशन से यूज़ किया गया है इसको। और इसी का हिंदी वर्जन मेरी शरण में आओ, ये हिंदी में है, भगवद गीता यथारूप पे बेस्ड है। हरे कृष्णा। अब है बुक्स हैं अजीत गोविंद दास और परमहंस प्राण दास। पुस्तक का नाम है परफेक्ट नॉलेज। इसमें जो साधारण क्वेश्चन जो है हर एक के मन में उठते हैं उन सब का जो है उत्तर दिया गया है। कॉमन क्वेश्चंस जो भी हम कभी प्रचार करते हैं, हम कभी बाकायदा किसी से बात करते हैं, लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं, जो हमसे प्रश्न करते हैं, उन सारे प्रश्नों को कंपाइल करके उनका उत्तर दिया गया है। और अब जो है आपके सामने है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर किताब है। आज बहुत ही सुंदर दिन है, उस उपलक्ष्य में महाराज के चरणों पे हम अर्पित करते हैं। इस बुक का नाम है परफेक्ट नॉलेज। तो हम जैसे कि देखते हैं कि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा एथिज्म फैला हुआ है, नास्तिकता। तो हर प्रकार के जो सवाल उठते हैं जनरल लोगों के, जनरल सवाल, उन सब के आंसर है इसमें, और बहुत सरल भाषा में आंसर समझाए हुए हैं। और उस आंसर को समझाते हुए इसमें बहुत खूबसूरत चित्र भी हैं। जिस प्रकार से जैसे कि लोग पूछते हैं भगवान ने रासलीला क्यों की, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, तो उस तरह से कई सवाल होते हैं। पत्थर में भगवान कैसे हैं, भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाएं, मंदिर की आवश्यकता क्यों है। तो ये पुस्तक अमोघलीला प्रभु द्वारा प्रेरित है, और हमारा परमहंस प्रभु और निपुण और यतेंद्र प्रभु का ये योगदान है महाराज के लिए। तो हम आशा करते हैं आप एक एक कॉपी लेके जाएंगे और इस प्रचार कार्य में मदद करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब बारी है हयग्रीव प्रभु। इन्होंने आचार्यों की कमेंट्रीज का संस्कृत के अंदर अनुवाद लिखा है सारा। भागवतम 10th कैंटो के 8 वॉल्यूम्स हैं। 10th कैंटो 10वां स्कंद, ये 1 वॉल्यूम आप देख रहे हैं। ऐसे 7 वॉल्यूम और हैं, टोटल 8 वॉल्यूम इन्होंने तैयार किए हैं। इसमें जो है 10th कैंटो के 8 वॉल्यूम्स में आचार्यस की कमेंट्रीज हैं, और पूरा का पूरा ग्रंथ संस्कृत में है। सारी कमेंट्रीज संस्कृत में हैं। हिंदी तो नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, हरे कृष्ण। ये जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो प्रभुपाद जो आचार्यों का टीका को आधार करके लिखे थे तात्पर्य, तो विशेष करके 10th कैंटो जो था, मैं 2 साल पहले 1st कैंटो से 12th कैंटो तक पब्लिश किया था। तो अभी जो 10th कैंटो है तो उसमें सिद्धर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीरराघवाचार्य आदि ऐसे 19 आचार्यों का टीका है। तो ये संस्कृत में पहले भागवतम विद्यापीठ अहमदाबाद के द्वारा पब्लिश हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ पेजेस जो है भागवतम में नहीं था। तो हमारी जो इस्कॉन के द्वारा जो श्रीमद् भागवतम विद्यापीठ बीबीड की ओर से जो स्थापित हुआ था, पूज्य गोपी प्राण धन प्रभु, तो इन्होंने ग्रंथों को संकलन करने के लिए बहुत प्रयास किए थे।
तो उनकी कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से आज ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद इस साल पूरी 8 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये एक ग्रंथ है, इसका विमोचन पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है। इसका कॉपी किस किस के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको इस कॉपी को जो है अपने पास लेना चाहिए। इसमें गुरु महाराज के चित्र हैं, एक से एक प्राचीन, जैसे कहते हैं कि बहुत पुराने, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमने देखा भी नहीं होगा, वो चित्र हैं सारे। तो सबको जो है इस ग्रंथ को अपने पास रखना चाहिए, देखना चाहिए, दर्शन करने चाहिए और पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। ये बाहर मिलेगा काउंटर पर। इसका नाम है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो सबसे अनुरोध है कि सबके पास इस ग्रंथ का होना आवश्यक है, एक परिवार में एक ग्रंथ का होना आवश्यक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु से कि वो महाराज का गुणगान करें। शीघ्र ही हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज भी आने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्च वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। युगावतारी चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया है श्री रूप गोस्वामी पाद को कि जीव अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत जन्मों से 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहा है और कभी किसी जीव को भाग्य उदा होता है, भगवान की कृपा होती है तो उसको मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि में भी किसी विरले जीव को जाकर के गुरु कृपा मिलती है। और जब गुरु और भगवान दोनों की कृपा होती है तभी उस जीव को भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो हमारे स्कूल के फाउंडाचार्य हैं, वो कहा करते थे कि जैसे स्त्री अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकती, पुरुष अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकता, दोनों का होना जरूरी है, ऐसे ही जीव का गुरु के प्रति समर्पण होना और भगवान की उस जीव के ऊपर कृपा होना, जब तक ये दोनों नहीं होती तब तक को किसी को भी अनंत कोटि जन्मों तक भक्ति लता बीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम सब गुरु भाइयों का, बहनों का ये बड़ा परम सौभाग्य है कि हमें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पर बैठ कर के उनका 78वां व्यास पूजा महोत्सव जन्म दिवस मना रहे हैं। कि हम सब गुरु भाई और बहनों के ऊपर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन भव तरही न कोई, चाहे वृचि शंकर सम होई। इस संसार में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हम और आपकी तो बात छोड़ेगा, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो और चाहे शिव जी क्यों ना हो, यदि ये गुरु की शरणागति नहीं लेंगे तब तक इनको भी भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो गुरु की महिमा तो शास्त्रों में भरी पड़ी है। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में इस बात पे जोर देते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, जिसको अध्यात्म जीवन में उन्नति करनी है,
उसको सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसको अपने गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब तक वो गुरु की शरण नहीं ग्रहण करेगा, जब तक प्रेम में उनकी सेवा नहीं करेगा, जब तक उनको अपनी सेवा से खुश नहीं करेगा, तब तक उसको गुरु का जो असली कृपा है, अध्यात्म ज्ञान, ज्ञानी तब दर्श देना। प्रभुपाद जी बोलते जिस गुरु ने आत्मसाक्षात्कार किया है, जिसने भगवान को देखा है, वो ज्ञान गुरु किसको देता है? अपने शरणागत और समर्पण शिष्य को देता है। ऐसे नहीं कि कोई जाए गुरु से दीक्षा ले ले बस कहते मेरी बात बन गई, ऐसे बनने कुछ होने वाला नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में श्री उद्धव जी से कहते हैं, नरदेहम आद्यम सुलभम सुकल्पम पल्लवम गुरुकर्णधारम मयानुकूल नवस्वतरितम भवधि न त्रेस्य आत्मदाह। हमारे बीच में हिजुलनेस लोकनाथ महाराज जी पधार गए हैं, कृपया जोर से उनका स्वागत करें। लोकनाथ महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, ऊपर से ये बहुत भाग्य से मिली है, ऊपर से ये एक नाव है। मनुष्य होनी पल्लवम, एक नाव के बराबर है, और नाव का जो मल्लाह है, कैप्टन कौन है? वो गुरु है। जब तक हमारा कैप्टन स्ट्रोंग नहीं होगा, तब तक हमारी जो नौका है वो किसी भी समय भंवर में डूब सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और पद्म पुराण में स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, बहवा गुरुवा संति शिष्य वित्ताय हार का, सुदुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का। हे देवी, ये जो कलयुग आ गया है, इस कलयुग में तो गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी। कैसे गुरु की बाढ़ आएगी? जो गुरु अपने शिष्य का धन का भोग करेंगे, जिनकी दृष्टि केवल अपने शिष्य के गुरु पे होगी, धन पे होगी। लेकिन हे देवी, इस कलयुग में जो सदगुरु होगा वो बहुत दुर्लभ हो जाएगा। सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ हो जाएगा। कौन सा गुरु? जो गुरु अपने शिष्य के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से उसको क्या करेगा? मुक्त करेगा। और ऐसे गुरु हैं हमारे ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उनके शिष्य हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी शिला भगवतपाद। शिला भगवतपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक बार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त की जो भक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु हुए, वो कहा करते थे कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त की जो सेवा है, प्रेममयी सेवा है, वही भगवान कृष्ण की वास्तविक सेवा है। जो अपने सदगुरु को खुश नहीं कर सकता, वो भगवान को कभी खुश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्थात सदगुरु की कृपा में ही भगवान की कृपा इंक्लूड होती है। तो हमें बड़े सावधान होकर के अपने गुरु का सेवा करना चाहिए। हिजुलनेस लोकनाथ महाराज की जय। हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हिडवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो हमारे गुरु महाराज हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनके बारे में आप मेरे से पूर्व जो हमारे गुरु भाई और प्रभुपाद के शिष्यों ने सुनाया है, वो अमूल्य गुणों की खान, जिनका वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। कोई कितना भी प्रयास करे तो भी उनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम भक्तों के लिए हमारे शास्त्रों में चेतावनी दी गई है, वो चेतावनी का हमें ध्यान देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चेतावनी है सभी भक्तों के लिए। जो गुरु है, ध्यान से सुनिएगा, जो गुरु है उसकी तुलना की गई है पानी से। जो गुरु है उसकी तुलना पानी से की गई है, और जीव शिष्य की तुलना की गई है कमल के फूल से, और भगवान कृष्ण की तुलना की गई है सूर्य भगवान से। जब ये जीव रूपी कमल का फूल
अपने सदगुरु रूपी जल की शरण में रहता है तो भगवान सूर्य जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं उसको प्रफुल्लित करते जाते हैं, खिलाते जाते हैं, खुशबूवान बनाते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमल का फूल अपने गुरु की शरणागति छोड़ देता है, हैं? जल से दूर हो जाता है, गुरु से दूर हो जाता है, गुरु को किसी कारणवश, अहंकारवश, किसी इच्छा कारणवश, किसी भी कारणवश गुरु का परित्याग कर देता है, तो ऐसे शिष्य का क्या हाल होता है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ही कमल का फूल पानी से अलग होता है तो सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो उसको जलाकर राख कर देते हैं। उसी कमल के फूल को क्या करते हैं, सूर्य भगवान क्या कर देते हैं, जिसको पहले प्रफुल्लित कर रहे थे, खिला रहे थे, उसमें खुशबू भर रहे थे, उसको क्या करते हैं, जला करके राख बना देते हैं। तो कहने का भाव है हमें बड़ी सावधानी के साथ अपने गुरु की शरणागति में रहना चाहिए, गुरु का आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की सेवा में लगे रहना चाहिए। हिजोलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरा पहली बार मिलन चंडीगढ़ में सन 1982 में हुआ। 1982 में मेरा मिलन इस्कॉन चंडीगढ़ में पहली बार हुआ और तब मुझे महाराज ने कृष्ण भक्ति की प्रेरणा दी और 1983 में मेरी दीक्षा हुआ, चंडीगढ़ में ही मेरी दीक्षा हुआ। उसके बाद 1991 में मुझे महाराज ने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया कि जाओ चंडीगढ़ छोड़ो और कुरुक्षेत्र में जाओ और शिला प्रभुपाद जी का जो प्रिय प्रोजेक्ट है ग्लोरी ऑफ कुरुक्षेत्र इस्कॉन वैदिक कल्चर सेंटर, कृष्ण अर्जुन का जो मंदिर प्रभुपाद जी चाहते थे, हैं प्रभुपाद जी के अनेक पत्र हैं, मुझे एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, आपने पढ़े भी होंगे। 1975 में तो बार बार प्रभुपाद जी कुरुक्षेत्र में एक विशाल कृष्ण अर्जुन का मंदिर बनाने की अभिलाषा लेकर के बार बार पत्रचार कर रहे थे, लोग अपने भक्तों को शिष्यों को प्रेरणा दे रहे थे, जिनमें से विशेष रूप से हिजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उन्होंने आदेश दिया था कि कुरुक्षेत्र में एक विशाल इस्कॉन का केंद्र होना चाहिए, उस मंदिर का नाम कृष्ण अर्जुन मंदिर होना चाहिए और कुरुक्षेत्र में आकर के ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ गीता के ऊपर कि पूरे विश्व के लोग आकर के यहाँ से गीता सीख करके उसको गीता को अपने जीवन में उतार सके, ऐसी प्रेरणा लेकर यहाँ से जाए। तो लंबा समय नहीं है, पिछले 16 सालों से हम लगातार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फाइनली गुरु महाराज की कृपा से, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से 14 अगस्त को हमारा वो जो भूमि का जो लीड डीड था वो पूर्ण हुआ और मैं आपको सरकार ने हमें बहुत सुंदर जगह दी है, 6 एकड़ जगह दी है, जब आप देखोगे तो आप गदगद हो जाओगे। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि गुरु महाराज ने पहले इच्छा प्रकट की थी साक्षी गोपाल विदेश जाने से पहले जुलाई में कि मैं चाहता हूं जब इस्कॉन को भूमि लीड डीड हो तो मैं यहाँ पर रहूँ। तो महाराज उस समय इंतजार करते रहे, लेकिन किसी कारण में डिले होता चला गया और देखेगा जब महाराज विदेश से आए तो उस इनके आने के बाद ही इनके सामने ही 14 अगस्त को उस भूमि पूजन का क्या हो, उस लीड डीड का काम पूर्ण हुआ। और आपकी जानकारी के लिए महाराज ने शाम के 7:30 बजे तक कुछ नहीं खाया, कहते जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं बार बार महाराज को मनाता रहा, महाराज इसमें तो समय लगेगा, प्लीज चलिएगा, अब तो लीड डीड होगी। नहीं कहते जब तक पूरा कंप्लीट काम नहीं जाएगा मैं कुछ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और महाराज मेरे साथ, हम भक्तों के साथ दफ्तर में रहे और जब आखिरी साइन हो गए तब महाराज ने सांस ली और फिर महाराज 8 बजे नई लैंड पे गए, वहाँ पर गए। उसके बाद महाराज ने कुछ प्रसाद लिया। तो कितने दृढ़ संकल्पवादी हैं हमारे महाराज अपने गुरु महाराज की इच्छा को क्या पूर्ण करने के लिए। तो हमें अपने गुरु महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे ये अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए डेडिकेटेड हैं और हमें भी उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। तो अब वो समय आ गया है, मेरे मुख से जब प्रधान वहाँ के चीफ मिनिस्टर आए हुए थे और 3 दिन में ही भूमि पूजन हुआ है। महाराज का आदेश था कि हमने इसी कृष्ण जन्माष्टमी पे इस भूमि का भूमि पूजन करना है, हमें केवल 3 दिन मिले। कितने दिन मिले? 3 दिन मिले। और 3 दिन में जो प्रोग्राम वहाँ पर हुआ, जो भक्तों ने अटेंड किया उनको पता है, आप थोड़ा क्लिप देख सकते हैं, भी दिखाएंगे 10 मिनट 5 मिनट की आपको क्लिप दिखाएंगे कैसा प्रोग्राम हुआ, क्या हुआ। तो वहाँ पर मेरे मुख से अचानक निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, वैसे तो मैं कभी नहीं बोला था कि महाराज, मैंने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट में कम से कम 100 करोड़ रुपये लगाएंगे। मैंने नहीं बोला, कदा किसी ने बुलवा दिया मेरे मुंह से। मैं जब बोल रहा था चीफ मिनिस्टर के सामने, मैंने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट को संसार में सर्वाधिक सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे और कम से कम 100 करोड़ तो लगाएंगे। लेकिन अब मेरी प्रार्थना है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो आप जानते हो तो धाम है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री टाउन नहीं, कुछ नहीं है।
और अब मैंने जो ये मेरी घोषणा हुई है गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुई है, उनकी कृपा से हुई है, उनकी प्रेरणा से हुई है, और उसको पूरा करने में अगर मेरे गुरु बहन भाइयों का मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं जानता हूं कि सरकार ने हमें कल 5 साल का समय दिया पूर्ण करने के लिए, तो 5 नहीं हम 4 साल में भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो क्या आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हो या नहीं? कितने भक्त तैयार है? हाथ में कीजिएगा, सीधे हाथ कीजिएगा, जरा जोर से ताली बजाएगा, गुरु महाराज को पता लगे आप तैयार हो। जोर से ताली बजाओ। तो जब गुरु बहन भाइयों का आशीर्वाद मिल गया है, कोऑपरेशन मिल गया, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से हम अपने टाइम लिमिट में ही इस मंत्र को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और आज मैं अपने गुरु महाराज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पुनः याचना करता हूँ कि कृपया करके मुझे अपनी चरणों की धूलि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, जिससे कि मैं उनकी सेवा में निरंतर इसी प्रकार से लगा रहूं और इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरा जीवन लगा रहे। अब 2 मिनट के लिए आप देखें कुछ में महाराज ने क्या क्या किया है, और उसके बाद अपना विचार कीजिए कि आपने क्या करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वीडियो कुरुक्षेत्र का भूमि पूजन, तो कुरुक्षेत्र का भूमि पूजन का वीडियो 2 मिनट का है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री वृंदावन धाम किसी का नंबर नहीं है। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री
Hare Krishna. Now I'll read offering sent by Ganpati Prabhu. Raspriya Mataji, Leela Shakti Mataji from Vrindavan. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutni Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Maharaj says, I'll take 2 minutes. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रुति गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं ये प्रकाश वितिरुचे प्रचारं कृत्वा साधु भगवद्पादाय ते नमः. Dear Srila Bhagavad-pada, please accept our humble obeisances to you and to Srila Prabhupada. On this most auspicious Vyas Puja day, we wish to meditate on some of your divine qualities and instructions. Although your grace encountered many obstacles in trying to spread love of God, yet through all these difficulties you preserved with sublime tolerance, kindness and unflinching determination of pure devotee of Krishna. Not only you maintained perfect Krishna consciousness throughout, but also you have accomplished many outstanding achievements. Despite your busy preaching schedule, you are not aloof from the details of temple management, always eager to know how much each disciple is advancing. Your disciples saw you as the most perfect Vaishnava to guide them in their services. You always remain close to each of the disciples. You often stress that spiritual knowledge is the only way that can destroy miseries, and any other knowledge satisfies wants only for the time being. Until there is a spiritual strength, even physical needs cannot be well satisfied. You are fully convinced that devotional service to Lord Krishna should be life's goal, and to engage others in devotional service is the highest welfare activity. Those convictions drove you in your traveling and in preaching activities. Your compassion has no bounds and glory spread all over. All of your activities are completely glorious, and being dear to Krishna, you are always victorious. Your smile alone can lift hearts of many, and words you speak so pure can capture those hearts. You are completely surrendered to Srila Prabhupada's lotus feet, and thus you have become expert in every endeavor. Please help us to reach this goal. Your humble servants, Ganpati Dasa, Rasapriya Devi Dasi, Leela Shakti Devi Dasi from Vrindavan. Now I'll request Vrindavan devotees, especially Matajis, to offer their offerings, and thereafter, after some time, His Holiness Loknath Maharaj will glorify Guru Maharaj. So, Govinda Devi Dasi, Vishakha Devi Dasi, Urmila Devi Dasi, Vishnupriya Devi Dasi, Geeta Devi Dasi, and Mahamanjari Devi Dasi. Here is your book. Govinda. From? Now it is time for Govinda Devi Dasi from Vrindavan to pay her offerings. कहाँ से हैं आप? जैसे Dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances and the dust of your lotus feet. All glories to you and glories to Srila Prabhupada. On this auspicious day of your 17th appearance day, I want to take an opportunity to glorify you and thank you for everything that you've given to me. You have given to me a life of happiness, of devotional service and devotees association. You have given me the process that can change me from
unsuccessful sense enjoyer to a fully satisfied servant of Krishna. And you have given me very able and qualified guidance on this path. You have given me the chance and inspiration and to become a servant of Shri Radha and Krishna in the spiritual world in Goloka Vrindavan. And you have given me the best place and the best service that I can prepare myself for this. In essence, you've given me a chance to use my human form of life to achieve the highest destination in life is to go back home, back to Godhead, to spiritual world. And on this auspicious day, I pray for your blessing. Please bless me that I can take full advantage of the mercy that you have given to me and that I could become perfect servant of Krishna at the dust of your lotus feet and in the service of Srila Prabhupada, Shri Gaura Nitai, Shri Krishna Balaram, and Shri Radha Shema Sundar. Guru Maharaj ki Jaya, Srila Prabhupada ki Jaya. Others, yeah. Thank you, Mataji. Thank you very much. Now it's time for Vishakha Devi Dasi to glorify Guru Maharaj. She is from Vrindavan. Hare Krishna. Jai Srila Bhagavad Pad, Jai Srila Prabhupada. Please accept our most humble obeisances at the dust of your divine, beautiful lotus feet. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Sri Gurum dinataranam. As you are always reducing the anxiety of the Lord and of Srila Prabhupada, you are most dear to the Lord than anyone else. Your utmost humility and compassion has saved so many devotees, and your divine grace has engaged them in Srila Prabhupada's service. You are as merciful as Lord Nityananda. Just like when Kala Krishnadas got into some bad association, Mahaprabhu told Kala Krishnadas to leave him. But Lord Nityananda and other devotees again engaged him in the service of the Lord. Similarly, in spite of our all bad qualities, you are always trying and engaging us in some or other service, which is ultimate goal of every living entity, loving devotional service of the Lord. Your dedication to Srila Prabhupada has no limits. Your faith for Srila Prabhupada has inspired us so many times. Not for a second you are deviated from Srila Prabhupada's teachings. You are completely sold out to Srila Prabhupada. Your purity and humility has changed and attracted the hearts of so many people. Your care for devotees so much about their needs and their sadhana. What to talk about devotees? You even care for small ants and birds and for all living entities. In almost all your lectures, you always focus on excellent chanting, reading Srila Prabhupada books, regular visiting temple. We are trying to follow it with our heart and soul in order to please you and the way you want your disciples to be. At least by doing so, we can be the cause of one smile on your lotus face. You have saved us from this deep dark well of lust, anger, envy, greed, and hellish life condition. Still we are so unfortunate, not able to please you. Now this has become the only goal of our life, to follow your instructions deeply and sincerely. O Gurudev, please give us some strength, power and intelligence so that we can please you and the service you and serve you the way you want us to be. It is our great desire to get deeply attached to your divine lotus feet and develop a very deep loving relation with you, which is already there from your side, but not from our side. You are the embodiment
of Satchidananda, same as the Lord, because pure devotees are non-different from the Lord. Pure devotees are the source of all spiritual knowledge, and they live forever in their instructions and give the real pleasure, which is devotional service to all living entities. Maybe by your blessings develop a deep connection with you so that we can never forget even for a second. On the special occasion on appearance, Vaishnavas are especially more merciful. So please be merciful on us and give us the strength to stick to your divine lotus feet all the time as a bee stick to honey. Your heart is the abode of the Lord and of Srila Prabhupada. So please help us so that we can also make our heart also a place for you and stay eternally. We have always disappointed you by our sinful activities, but still you are so much compassion that you are always tolerate us and forgive us for innumerable offenses. May you have a very, very long and healthy life and take away all the troubles to serve Srila Prabhupada. Like Narad Muni, you are always traveling to preach the mission of Lord. You are a genuine servant of Srila Prabhupada, serving Srila Prabhupada all the time. Endeavor hard to distribute Srila Prabhupada books, rigidly in their principles and teachings. Vigilance that ISKCON should always be protected. Always aspiring for the mercy of Srila Prabhupada. Non-dual in your relationship. Bearing trouble for the sake of preaching always. Please, kindly Gurudev, bless us so that we can on this day offer a gift of our complete dedication to you and Srila Prabhupada by becoming good devotees. We want to surrender to you completely. As a person, if soul has no choice of his own, we want to sold us completely to your lotus feet. You have created our great fortune. Long life to you, Gurudev. Srila Bhagavad ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Vishaka Mataji. Now I'll request Satyavati Mataji to come and glorify Guru Maharaj. नहीं अभी इनका नंबर आएगा नहीं ठीक है आप बोलिए कहाँ से आप Satyavati Mataji is from Uzbekistan and presently she is living in Vrindavan. छोटा करिएगा short. Hare Krishna. Our dear most beloved spiritual father and master, Gopal Krishna Goswami Srila Bhagavad-pada. Today is the most auspicious day of your divine appearance in this world, 70 years ago. This date makes us, your disciples, also to present and consider all what is done and put on planning what should be done in the future. Everybody has his duties must perform before spiritual master. As stated in Srimad Bhagavatam, entitled Sudama Vipra visits Lord Krishna. Naham ijya prachatipyam tapaso pasamenava tushyeyam sarva bhutatma guru shushrushaya yatha. I, the soul of all beings, am not satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline, as I am by faithful service rendered to one spiritual master, told Lord Shri Krishna to Sudama. What is a perfect service can be rendered by disciple to his beloved spiritual master, father? As my good God brother Shridam Prabhu from Tashkent temple in discussion on this topic said, the highest perfection is that when disciple and spiritual master thinking in the same way. From the lectures and books published by our beloved Guru Maharaja, we know the principle tasks Guru Maharaja asking to perform by his disciple.
attentive chanting, and our prescribed rounds of Hare Krishna Mahamantra, and reading carefully Srila Prabhupada's books. Besides this, Maharaja asking to do some practical service, and it is distribution of Srila Prabhupada's books and Harinam Sankirtanam. All these sublime spiritual activities inspired by Guru Maharaja, leading us back to Godhead, back to our home. We are trying all our best to follow divine instructions of our beloved Guru Deva, because by following these instructions, we are purifying our consciousness from ignorance and Maya illusion. I want to apply to this opportunity today in front of my God brothers and God sisters to glorify the sublime qualities of our beloved Guru Deva. As stated in Srimad Bhagavatam, Tasmat Gurum Prapadyeta Jigyaso Shreya Uttamam Shabde Parecha Nishnatam Brahmanyopashamashrayam. Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual masters. We are finding all these qualities present in our Guru Maharaja. According to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, the disciple also should be bona fide in order to become a perfect Vaishnava. Even though one may have the good fortune to accept a bona fide, highly qualified guru, if one maintains a taste for fruitive activities or mental speculation, one's advancement will be checked. But if a serious disciple surrenders to a bona fide spiritual master, there is absolutely no impediment to the transmission of perfect knowledge and bliss in the devotional service of the Lord. By always remembering the exalted position of the bona fide spiritual master, the disciple will achieve shelter at the lotus feet of Krishna. Sublime qualities of our beloved Guru Maharaja, gathering thousands of his disciples around him, and by contemplating the activities performed by our beloved Guru Maharaja, and learning art of applying them in our devotional service, we are purifying our consciousness and advancing in Krishna consciousness. Srimad Bhagavatam describes 28 qualities of exalted saintly person. According to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the 17th quality, named Mat Sharana, or taking complete shelter of the Lord Krishna, is the most important. And many cases when we are observing the manifestation of this quality in our beloved Guru Maharaja. Guru Maharaja's spiritual activities. Our beloved spiritual master, Srila Bhagavad Pada, created such loving family around himself, such a loving relationship between him and his disciples, which cannot be found in a material family, where everything based on material bodily attachments. Now, after being 20 years in Krishna consciousness, it is impossible even to imagine to go back to our karmi life. A Vaishnava sannyasi does not give up family life. He makes the whole world his family. But Mayavadi sannyasi gives up everything to become a sannyasi. We belong to one family, one Gotra, Achyuta Gotra, family of God. We are all brothers and sisters, and Lord is enjoyed seeing how his children are lovingly cooperating with each other to bring pleasure to their divine Father. But children need a guide, a bona fide teacher, a representative of Father, who entrusts to him his, this blissful position of a bona fide guide. So our Gurudev perfectly executes the bona fide duties of rising children of Supreme Godhead up to standard of a pure Vaishnavas. Only out of his immense
compassion does the personality of Godhead reveal himself as a spiritual master. Therefore, in the dealings of an acharya, there are no activities but those of transcendental loving service to the Lord. He is the supreme personality of servitor Godhead. It is worthwhile to take shelter of such a steady devotee who is called Ashraya Vigraha, of the manifestation or form of the Lord, of whom one must take shelter. We are seeing at last 20 years how many living beings take shelter at lotus feet of our beloved Gurudeva, and how many of them were transformed into pure devotees, Vaishnavas, by his mercy. In this most auspicious day for all of us, I want to offer my humble obeisances to the lotus feet of my beloved Gurudeva and pray to Lord Krishna and Srimati Radharani to give us again and again that immerse of pleasure and ecstasy deriving from the association with their pure devotees, our beloved Guru Deva, Gopal Krishna Goswami Srila Bhagavad Pada, and give us fortunate opportunity to serve to his lotus feet. Until spiritual master is pleased by service of his disciples, there is no any chance of advancing in Krishna consciousness. Therefore, let us take full shelter at lotus feet of our Guru Maharaja and pray to remain forever at the shade of his lotus feet as a particle of dust and perform humble service at the lotus feet of our beloved spiritual master. Gopal Krishna Goswami, Srila Bhagavad Pada, 70th birth anniversary Maha Mahotsava ki jai, Srila Bhagavad Pada ki jai, Srila Bhagavad Pada ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Now it's time to hear glorification by His Holiness Loknath Maharaj Swami. हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। ये मेरा प्रणाम गोपाल कृष्ण महाराज के चरणों में है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बैठना है, बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ अभी तक। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। Yeah, another order. I had to sit. But this may be okay. So. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी। और फिर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का व्यास पूजा महा महोत्सव has become talk of the town. सर्वत्र चर्चा, और it is causing big traffic jams. यहाँ मुझे पहुँचते पहुँचते जो देरी हुई,
मुझे कहा कि आई ग्लोरीफाई, तो मैं सोच रहा था कि आप जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, ये भी एक बहुत बड़ा गौरव है गोपाल कृष्ण महाराज का। और वैसे सभी तो पहुँचे नहीं गोपाल कृष्ण महाराज के the followers and fans and the disciples सारे संसार भर में बिखरे हुए हैं। वैसे शिष्यों के पहले तो हुआ या बच्चों के पहले भाई होते हैं। जब आ रहा था मैं तो सोच रहा था कि दिस ईयर 2014 well 15 जो है, ये मेरे गोपाल कृष्ण महाराज के साथ जो सर्वप्रथम संपर्क हुआ, संबंध में हम आए, तो उसकी ये 40th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। अब शायद 4 या 8 या कोई भक्त कह गए आई एम 35 years, I want to talk also। तो ऐसा ऐसे भी है, लेकिन 40 साल वाला तो कोई नहीं है। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र गोपाल कृष्ण महाराजः। जब मैं कुरुक्षेत्र में जो यश मिला और जो बैटल फील्ड में, कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में हमारे गोपाल कृष्ण महाराज और साक्षी गोपाल, दोनों भी गोपाल ये लड़ रहे थे, तो वह तत्र श्री और तत्र विजयो, वह जहाँ गोपाल कृष्ण महाराज और जहाँ श्री कृष्ण और गोपाल कृष्ण महाराज, तत्र वहाँ पर विजय, वहाँ पर वैभव भी, श्री विजय और भूति, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर का भी प्रदर्शन हम करते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज को जो शक्ति, सामर्थ्य भगवान और श्रील प्रभुपाद का विशेष अनुग्रह इनके ऊपर, कृष्ण शक्ति बिना नाई तार प्रवर्तन। तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज का जो संसार भर में जो साम्राज्य है, एज ए गवर्निंग बॉडी कमीशन में से हमारे GBCs में द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो GBC बॉडी में है, उसमें गोपाल कृष्ण महाराज नंबर 1। और कई आए और फिर गए भी, रिटायर्ड भी हुए, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज is hanging in there, not only hanging in there, but he's very much, very active on the governing body commission। इनके प्रचार का क्षेत्र तो हुआ कहना क्या, एक समय तो ऐसा भी समय था, श्रील प्रभुपाद इनको हुआ, he was an MBA and Master in Business Administration, कनाडा में किया, कनाडा और फ्रांस, I don't know, both, मतलब 2 degrees, yes। तो श्रील प्रभुपाद नोट किए और ऐसे capable, competent एडमिनिस्ट्रेटर को भारत बुलाए और एक समय सारे भारत के एक ही GBC हुआ करते थे और वे थे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज।
और अब भी कुछ आधा भारत उन्हीं के पास ही है, और बाकी आधा और गोपाल कृष्ण महाराज is handling the rest, the half, other half. यदि गौर न होते और गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता? ऐसा एक गीत है। और फिर जयप्रदा का महाराज भी एक गीत लिखे हैं, यदि प्रभुपाद न होते तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिर मैं ये भी सोच रहा था कि यदि गोपाल कृष्ण महाराज नहीं होते तो फिर आप नहीं होते, मैं होता, लेकिन किससे बात करता मैं। और केवल आप ही नहीं हो, गोपाल कृष्ण महाराज के शक्ति, सामर्थ्य और एम्पावरमेंट जो उनको प्राप्त है, उससे इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता? गोपाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद ने उनको बीबीटी का चार्ज भी दिया। इज वन ऑफ द इंटरनेशनल बीबीटी ट्रस्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक प्रोडक्शन। लेकिन प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि बुक का प्रोडक्शन हो और गोडाउन भरा हो। प्रभुपाद चाहते थे कि गोडाउन को खाली होता रहे। तो गोपाल कृष्ण महाराज संसार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुविख्यात है। और टू प्लीज मी, प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो कितने प्रसन्न होंगे श्रील प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज से। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते, या ये दोनों भी मिलता है, भूरिदा जनः। ये वचन वैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने सुने थे, राजा प्रताप रुद्र कह रहे थे इन वचनों को, जो ओरिजिनली गोपी गीत का वचन है। तो आप जैसा, तो चैतन्य महाप्रभु ने वचन जब सुने तो ये गृह्णन्ति दे भूरिदा जनः, जो ये कथामृत का जो वितरण करते हैं वे सबसे अधिक दानी है, दयालु है। तो ये वचन चैतन्य महाप्रभु ने सुने तो चैतन्य महाप्रभु, तुम ही तो भूरिदा, तुम ही तो दयालु हो, दानी हो, जो मुझे ये कथामृत सुना रहे हो। और ऐसा कह के चैतन्य महाप्रभु जो लेटे हुए थे वे बैठने लगे, और बैठ भी गए और कहने लगे कि मेरे पास तो तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, तुमने तो मुझ पर बहुत उपकार किया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ, त्रिदंडी या एक दंडी भिक्षुक। हाँ, लेकिन एक बात कर सकता हूँ, आई कुड डू वन थिंग। वो क्या है? तुम मेरे आलिंगन को स्वीकार करो। हरी हरी बोल। तो इसका क्या कनेक्शन है? तो आई वॉज थिंकिंग कि गोपाल कृष्ण महाराज जो तव कथामृतम, कृष्ण करणामृत, भागवतामृत, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों के वितरण में इतना सारा अथक प्रयास और इस जो साफल्य भी उनको
विश्व भर में मिलता है और वे नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो बड़े दयालु और दानी दाता है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। यू आर नॉट इम्प्रेस्ड? और तो फिर मैं सोच रहा था कि निश्चित ही जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया रामानंद राय को, तो श्रील प्रभुपाद भी गोपाल कृष्ण महाराज को गाढ़ आलिंगन। आई एम सो मच प्लीज विथ यू गोपाल कृष्ण। उस समय तो प्रभु थे, प्रभुपाद के समय, अब तो स्वामी गोस्वामी हो गए। तो the book distribution, or well, in every field Maharaj is just leading. एक समय हो सकता है वही, I don't remember the date, 74 या गोपाल कृष्ण महाराज को जब बुला रहे थे, भारत आने के लिए कह रहे थे, फिर आए भी। और तो प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा जिसमें उल्लेख था कि दिल्ली का, प्रभुपाद लिखे थे कि पिछले 50-60 वर्षों में दिल्ली में एक भी नया मंदिर नहीं बना है। इस्कॉन को दिल्ली में एक विशेष अशेष मंदिर का निर्माण करना होगा। ऐसा नॉट वर्ड फॉर वर्ड, लेकिन ऐसे इस आशय का, इस भाव का पत्र लिखे थे गोपाल कृष्ण महाराज को, श्रील प्रभुपाद लिखे थे। तो वैसे प्रभुपाद तो एक ही मंदिर का उस पत्र में उल्लेख किए थे। वैसे अब ये रहस्यमयी बात है जो गोपाल कृष्ण महाराज जी जानते हैं। प्रभुपाद चाहते थे दिल्ली प्रदेश में, एनसीआर में 1 दर्जन मंदिर होने चाहिए। ये हम और ने तो नहीं सुना था, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज से हम सुनते हैं। तो ये गोपाल कृष्ण महाराज और श्रील प्रभुपाद के बीच की कुछ गुह्यम आख्याति प्रच्छति वाली बात होगी, जिसका रहस्य का उद्घाटन वे फिर किए, हमें भी कहे। तो प्रभुपाद एक मंदिर का उस पत्र में उल्लेख किए और फिर और अनेक मंदिरों का उल्लेख किए। तो उस इच्छा की पूर्ति का भी गोपाल कृष्ण महाराज इस एनसीआर में दर्जन मंदिर स्थापित कर चुके हैं। और इस राजधानी को वो धर्मधानी बनाएंगे। या जहाँ तहाँ यहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, मंदिर एवरीवेयर। तो और शहरों में भी कहीं पर 2 मंदिर, कहीं तो 3-4 मंदिर, ऐसे और शहरों में। लेकिन एक ही शहर में, दिस एनसीआर इज लाइक वन बिग सिटी, वन ग्रेटर सिटी। तो एक ही शहर में 1 दर्जन टेम्पल, दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और फिर इतना ही नहीं, फिर आइसिंग ऑन द केक अब कुरुक्षेत्र का भी। और वैसे ये तो इस प्रदेश में और भी कई सारे मंदिर का निर्माण भारतवर्ष में और देशों में गोपाल कृष्ण महाराज को श्रेय जाता है। तो गोपाल कृष्ण महाराज यदि नहीं होते तो क्या होता? तो ये मंदिर भी नहीं होते। और तो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और तो निश्चित ही वहाँ भी मंदिर बना के रहेंगे ही हमारे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। वह क्या गोपाल कृष्ण महाराज हमारे भ्राताश्री बड़े भैया, दाऊ जी का भैया
हमारे प्रभुपाद तो फिजिकली नहीं रहे, वपू नहीं रही, तो वह तो पिताश्री जब नहीं रहते तो फिर जो बड़े भाई है वे औरों को, छोटे भ्राताओं को संभालते हैं, तो हमें भी वे संभाल रहे हैं। एंड वही आज ही पता लगा, मुझे पता नहीं था कि इतने साल के वे हो गए हैं। I did not know you were 70 years old, Maharaj, today. लेकिन वैसे बूढ़ा होना तो आसान होता है, नहीं मरो तो बूढ़े होते जाओ। बूढ़े होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तो केवल बूढ़ा होने का कुछ महत्व है, लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं है। वयोवृद्ध से वैसे शील वृद्ध या साक्षात्कार या ज्ञान वृद्ध होना अधिक श्रेयस्कर है। तो गोपाल कृष्ण महाराज केवल वयोवृद्ध ही नहीं है, वे आपके लिए तो है ही, और हम कुछ जूनियर ब्रदर्स, नॉट सो मच जूनियर, बाल कुछ, हाँ। तो वह धन्यवाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आप जो सभी को अपना प्रेम, और हम भ्राता और भगिनियों को भी आपका प्रेम और आपका सहारा आप देते हो, या मेरे कुछ प्रिय और निकटवर्ती गुरु भाइयों में मैं गोपाल कृष्ण महाराज का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट रखता हूँ। तो लास्ट टाइम मुझे ऐसी, यहाँ पर नहीं लेकिन ऐसी ही व्यास पूजा में आने का और आपको संबोधित करने का जब अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने कहा तो था, आई